Question number 5. A particle P moves on the x-axis from the origin with an initial speed of minus 20 meter per second. The acceleration at time t second after leaving O is given by, this is A is equal to 12 minus 2t, this is acceleration time relation. Sketch a velocity time graph from 0 to 12 second t 0 to 12 second, indicating the times when P is at rest. Acceleration time हमें दिया हुआ है, acceleration time relation यहाँ से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल velocity time relation फाइंड करना है. तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास velocity आएगी. तो सो इंटीग्रेटिंग acceleration with respect to time, we will get integrating acceleration, we will get velocity. Integrating the right side, 12 minus 2t, this becomes p is equal to 12t minus 2t square over 2 plus c. This becomes v is equal to 12t minus t square plus c. Now c is the constant of integration. Now we will find the value of c using the initial conditions. Since the particle starts from the origin, ओरिजिन पे टाइम 0 होता है, t इज इक्वल टू 0 एंड b इज गिवन -20, v is equal to -20, or now putting these two values t of t and b, we will get c is equal to 0. Now velocity time relation will become v is equal to minus t square plus 12t minus 20. This is velocity time relation. Now for rest हमने इंडिकेट करना है टाइम्स व्हेन p पार्टिकल इज एट रेस्ट. फॉर रेस्ट स्पीड 0 होगी. फॉर रेस्ट पार्टिकल हैव स्पीड 0. तो वी विल पुट minus t square plus 12t minus 20 is equal to 0. नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. t square minus 12t plus 20 is equal to 0. Now this is a quadratic equation in t. We can find two values of t. इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास factorizing we will get two values of t. T square minus 10t minus 2t plus 20 is equal to 0. So we will get two values of t. T is equal to 2 and t is equal to 10. At t is equal to 2 and t is equal to 10, the particle will be at rest. Now we have to sketch the velocity time graph. So we have to find the important features of the graph. यहाँ से हमने टर्निंग पॉइंट भी फाइंड करने हैं. टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है हमने उस कर्व का. सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, तो हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म में स्पीड टाइम ग्राफ आएगा। तो उसके लिए हमें टर्निंग पॉइंट चाहिए। टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा, सिंस दिस रिलेशन इज इन वी एंड टी, तो सो टी जो होगा वो हमारे पास, जिस तरह एक्स होता है माइनस बी ओवर 2a, इसी तरह टी इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा माइनस बी, ये देख रहे हैं आप, माइनस टी स्क्वेयर माइनस, इस इक्वेशन में देखें, टी स्क्वेयर माइनस 12t, या इसमें देख लें माइनस बी इज माइनस 12, माइनस 12 और 2a, a is minus 1, so this becomes 2 and minus 2, t is equal to 6. Now putting this value of t here, तो हमें v की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी हमारे पास। तो v will become, putting this value of t is equal to 6, we will get v is equal to 16. So the turning point of this velocity time graph will be, टर्निंग पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 16। अब हम ये स्केच बनाते हैं। टर्निंग पॉइंट, दिस इज क्लियरली टर्निंग पॉइंट is 16 is the maximum point on the curve, एंड t की वैल्यू यहाँ पे ये देखें 6 है। पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, और हमने, since the particle moves on the x-axis from the origin with initial speed -20 to -20, जो है वो t पे हमने पॉइंट रिप्रेजेंट कर लिया -20, दिस इज v एट 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी -20 है। तो ग्राफ passes through 2 and 10 because the velocity is 0 at 2 and 10। ये देखें यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है और यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हमने 0 to 12 हमने t lies between 0 to 12, ये देखते हैं हमें ग्राफ 0 से 12 तक बनाया, दिस इज 12, दिस इज -20। तो ये ग्राफ हम स्केच कर लेंगे। तो ग्राफ स्केच हो गया ये। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए ये हमने इसको शेड किया है, बिकॉज वी हैव, आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस, ये क्वेश्चन पार्ट ए जो है हमने स्केच कर दिया 0 से 12 सेकंड तक उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हेन p is at rest, वो इंडिकेट कर दिया है। दिस इज कंप्लीटेड पार्ट ए। नो पार्ट, फॉर पार्ट बी, since find the total distance traveled by particle p in the interval 0 to 12, तो यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है वो पोर्शन, यहाँ पे हमने एरिया फाइंड करना है। हमने इस टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा कर्व के अंदर। तो हमने इस एरिया को स्प्लिट कर लिया है। फर्स्ट वी विल फाइंड एरिया ऑफ लेफ्ट साइडेड shaded, that represents S1, distance covered by the particle from 0 to 2. We will find this area by using integration. Then S2, area under the curve from 2
to 10, then we will find the area of 10 to 12 by integrating the curve. So far, S1, area 1, that will represent the first distance. S1 will be, we will integrate velocity with respect to time. तो velocity time relation हमने पहले पार्ट में फाइंड कर लिया है. तो velocity को इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा. तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग द velocity from 0 to 2. 0 2 is the limit. 12t minus t square minus 20 with respect to time. तो हमारे पास इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा S1 60 स्क्वायर. 12t स्क्वायर ओवर 2 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 स्क्वायर आ जाएगा. टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी टी क्यू ओवर 3 माइनस 20 की इंटीग्रेशन आएगी माइनस 20 टी. 0 to 2 लिमिट है. अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट इज 2, so this becomes 6 into 2 square minus 2 power 3 over 3 minus 20 into 3 20 in 20 into 2. In place of t we are putting t is equal to 2. No, minus lower limit is 0, that is all the terms involving t, so this becomes 0. After simplifying it, we will get S1 is equal to 24 minus 8 over 3 minus 40, that is minus 56 over 3. ये देखें डिस्टेंस जो है हमारे पास नेगेटिव में आया है. नेगेटिव साइन just shows that the area bounded by the curve lies below the x-axis. वो नेगेटिव वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, तो सो नेगेटिव में आएगा. बट वी विल find the we will take it positive because we have to find the distance. Distance is always positive. फाइनल आंसर में हम नेगेटिव 56/3 को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. तो फॉर S2 के लिए हम, आप देख रहे हैं शेडेड पोर्शन सेकंड, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 2 to 10. वी विल इंटीग्रेट एंड अप्लाई द लिमिट्स. इंटीग्रेट हमने पहले ही किया हुआ है उसको, अब जस्ट वी हैव टू अप्लाई द लिमिट्स. इंटीग्रेशन हमने v को इंटीग्रेट करके डिस्टेंस पहले फाइंड कर लिया हुआ है, बट वी हैव टू अप्लाई द लिमिट्स. सो 6t स्क्वायर माइनस t 3 over 3 minus 20t, limit is 2 to 10. यहाँ से आप देखेंगे कि ये एरिया S2 जो S2 से रिप्रेजेंट हो रहा है एरिया लाइज अबव द एक्स एक्सिस. इसका आंसर पॉजिटिव आएगा बिकॉज इट लाइज इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन या अबव द एक्स एक्सिस. So after applying the limit we will get 6, upper limit 10 है, 10 square minus 10 cube over 3 minus 20 into 10. This is upper limit minus lower limit is
टू, और टू का आंसर हमने टू को अप्लाई करके, टी की वैल्यू टू को पुट करके हमने पहले ही फाइंड किया हुआ इन इन S1. दिस इज द S1. दिस इज द एरिया वन टी इज इक्वल टू 2, तो सो हम इसकी वैल्यू एज सच इधर लिख देंगे -56/3. अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 600 माइनस 1000/3 -200, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 56/3. Finally, we will get 400 minus 1000/3 plus 56/3. After calculating, we will get 256/3. ये देखें, ये पॉजिटिव आया है बिकॉज एरिया लाइज अबव द एक्स एक्सिस. वैल्यू पॉजिटिव आई है. एस थ्री फाइंड करने के लिए ये फिर हम ये डायग्राम में देखें, S3 जो है ये एरिया हम फाइंड करेंगे, एरिया लाइज बिलो द एक्स एक्सिस. इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, बट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको पॉजिटिव लेंगे फाइनली. फॉर S3 इंटीग्रेट पहले हमने किया हुआ है, बट हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है. ये देख रहे हैं आप 10 to 12 टी की वैल्यूज हैं, तो ये 10 to 12 हम लिमिट लेंगे. लिमिट्स 6t² -t³/3 -20t. Limits are 10 to 12. Upper limit minus lower limit. Upper limit is 12. 6 into 12 square minus 12 cube over 3 minus 20 into 12. This is upper limit. Minus lower limit is 10. 6 into 10 square minus 10 cube over 3 minus 20 into 10. इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हमारे पास आएगा 6 into 144 minus 1728/3 minus 240 माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे थ्री टर्म्स को तो हमारे पास 200/3 आ जाएगा. नेक्स्ट S3 will be after calculating this will become 624 minus 1728/3 minus 200/3. Finally, S3 will be 144/3 minus 200/3. That will be equal to minus 56/3. दे रहे हैं आप, एरिया जो है ये नेगेटिव में आया है बिकॉज द शेडेड रीजन लाइज बिलो द एक्स एक्सिस. तो अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी S1 plus S2 plus S3. so we will now we will take only the magnitude. हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो -56/3 इसका मैग्नीट्यूड लेंगे.
मैग्नीट्यूड का साइन होता है +256/3 प्लस -56/3। ये हमने इसलिए लिया है कि हम एरिया जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। 56/3 प्लस 256/3 प्लस 56/3, the final answer will be 368/3। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 मीटर आ जाता है। तो दिस इज आंसर। So next question of this paper is question number 6. Figure 6.1 shows particle A and B of mass 4 kg and 3 kg respectively attached to the ends of a light inextensible string that passes over a small smooth pulley. The pulley is fixed at the top of the plane, which is inclined at an angle 30 degrees to the horizontal. A particle hangs freely below the pulley and B is on the inclined plane. The string is taut and the section of the string between particle B and the pulley is parallel to a line of greatest slope of the plane. It is given for part A. It is given that the plane is rough. प्लेन रफ है तो फ्रिक्शन होगी प्लेन में, एंड द पार्टिकल्स आर इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मीन जस्ट टू मूव, नॉट मूविंग एट द पॉइंट ऑफ मूविंग। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो होता है क्योंकि देयर इज नो मूवमेंट। वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज between B and the plane. Coefficient of friction will be mu। तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो हम first of all we will represent the forces acting on this system for particle A। Weight vertically downward 4g, tension towards pulley। टेंशन भी एक फोर्स होती है, टेंशन टूवर्ड्स पुली। नाउ वी रिजॉल्व particle B will find two components along the plane and the perpendicular to the plane। वेट को हमने रिजॉल्व करना है। सिंस B is lying on the plane, weight will act vertically downwards, mg। Now these are the components. We will resolve this weight 3g, find two components along the plane and perpendicular to the plane। weight का एक ये component होगा that is perpendicular to the plane, दूसरा component along the plane होगा वो ये होगा। तो ये एंगल 30 है। this component is 3g cos 30। this is 3g sin 30। normal reaction since the particle lies on the plane तो रिएक्शन होगा प्लेन का r। नो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशंस बनेगी फॉर पार्टिकल A। फॉर पार्टिकल A इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी this। since system is in limiting equilibrium, so equation of motion for particle A is 4g minus t is equal to 0। net force is equal to 0 on A।
जी 10 होता है, तो 40 माइनस टी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम हेयर टी इज इक्वल टू 40 न्यूटन। फॉर पार्टिकल बी, एक और फोर्स होगी, सिंस द प्लेन इज रफ, फ्रिक्शन इज म्यू आर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। फ्रिक्शन एफ या म्यू आर एक ही बात है, एफ इज इक्वल म्यू आर होता है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन टूवर्ड्स अपोजिट ऑफ द मूवमेंट होती है। मूवमेंट तो इसको इसमें नहीं है क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। सिंस ए इज हैवियर देन बी, तो टेंडेंसी टू मूवमेंट अपवर्ड होगी, बी विल बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एट द पोजीशन टू मूव अपवर्ड, बट मूवमेंट नहीं है, जस्ट टू मूव है, तो टेंडेंसी टू मूवमेंट अपवर्ड है बी की, तो सो फ्रिक्शन विल अपोज, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज इन अपोजिट direction mu r, so equation of motion for particle v will be t minus mu r minus weight का component minus mg sin 30 degree is equal to 0। t is 40, तो so this become 40 minus mu हमने फाइंड करना है। r is, आप देख रहे हैं कि r is equal to वेट के कंपोनेंट के इक्वल होगा 3g cos 30 डिग्री, 3g cos 30 डिग्री माइनस एम जी साइन 30 मीन 3g साइन 30 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करके म्यू फाइंड कर लेंगे। cos 30 साइन 30 की वैल्यूज पुट करेंगे, 40 माइनस म्यू 3g मीन 30, cos 30 की वैल्यू 0.866 होती है डेसिमल्स में, माइनस 3g 30 साइन 30 1/2 होता है, तो सो ये इज इक्वल टू 0। नो 30 से 30 को कैंसिल आउट कर देगा तो वो 15 आ जाएगा। 40 माइनस 15 जो है वो 25 रह जाएगा। इसको ऐसे एक और स्टेप कर लेते हैं। 40 माइनस म्यू 30 इंटू 0.866 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 40 माइनस 15 25, म्यू वाली टर्म राइट साइड पे ले जाए, म्यू इंटू 30 इंटू 0.866 म्यू इंटू मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 25.98 इज इक्वल टू 25, म्यू इज इक्वल टू 25 ओवर 25.98, finally we will get mu is equal to 0.962, correct to three significant figures. Now part B of this question is, this is figure 6.2, system is same, particle A and B are same, inclined plane is same, but it is given instead that the plane is smooth. Now in this case, the plane is smooth and the particles are released from rest when the difference in the vertical height of the particle is 1 meter. When the difference in the vertical height of the particle is 1 meter, diagram में show किया हुआ है, 1 meter is the difference of height between A particle and B particle. Use an energy method to find the speed of the particles at the instant
when the particles are at the same horizontal level। यहाँ देखें एनर्जी मेथड का है, तो सिंस द प्लेन इज स्मूथ एनर्जी मेथड, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। when the particles are at the same horizontal level, पार्टिकल ए और बी एट द सेम लेवल, वो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम में ही हम रिप्रेजेंट करते हैं कि सेम लेवल पे कैसे आएगा। पार्टिकल ए जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, जब उसको रिलीज करेंगे तो ये यहाँ इसकी पोजीशन होगी, और पार्टिकल बी जो है वो अलोंग द प्लेन मूव करेगा, उसकी वो पोजीशन ये होगी एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये देख रहे हैं आप कि हॉरिजॉन्टल लेवल उनका सेम है। पार्टिकल ए जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, और पार्टिकल बी विल मूव अलोंग द प्लेन। अब हमने स्पीड फाइंड करनी, दोनों पार्टिकल्स की स्पीड जो होगी वो सेम होगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल्स आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो फर्स्ट हम देखते हैं पार्टिकल बी के लिए कि इसकी, क्योंकि हमने एनर्जी मेथड के लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होती है, तो हमें हाइट रिक्वायर है। बी की हाइट क्या होगी और ए की हाइट क्या होगी। फर्स्ट वी विल फाइंड फॉर बी, फॉर पार्टिकल बी, यहाँ पे बना लेते हैं इसकी हाइट फाइंड करने के लिए। ये पार्टिकल बी की हाइट जो है उसको हम यहाँ से इस पोजीशन पे आया है, ऊपर को मूव किया है, तो हाइट उसकी जो वर्टिकल हाइट है उसको सपोज कर लेते हैं कि एच है, एच। और डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द प्लेन इज, उसको हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इन द सेम वे पार्टिकल, पहले इसको फाइंड करते हैं हाइट कितनी है, यूजिंग रेशियो साइन। ये देखें ये एंगल जो है ये भी 30 होगा, क्योंकि पैरेलल टू द प्लेन है, और पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, वो रेड लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, 30 डिग्री एंगल बनाएगी, बिकॉज दिस एंगल इज 30, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बना, तो वो रेड लाइन भी हॉरिजॉन्टल बनाई है। तो यहाँ से एज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज फॉर दिस ट्राइंगल, पार्टिकल बी में जो है एच ओवर एक्स इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। फ्रॉम हेयर एच विल बी एक्स साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 1/2 होता है, तो सब हमारे पास हाइट जो है वो x/2 आ जाएगी। दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल बी। Now, since the vertical distance between A and B is 1 मीटर, it is given to height of A plus height of B जो है वो 1 होगी। Height of particle A plus height of B is equal to 1 होगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे पार्टिकल ए की हाइट जो अभी हमने फाइंड की एक्स, पार्टिकल ए
पार्टिकल ए बी की हाइट जो है हमारे पास x/2 है। तो यहाँ पे पार्टिकल बी ने हॉरिजेंटली कवर किया है डिस्टेंस है, तो वो वही सेम डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो पार्टिकल बी के लिए वो होगा, वो भी यहाँ से यहाँ तक जो है इसको भी हम x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, पार्टिकल बी ने हॉरिजेंटल कवर किया है, तो ये दोनों सेम होंगे। नो हाइट ऑफ ए प्लस हाइट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। हाइट ऑफ ए एक्स प्लस हाइट ऑफ बी x/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से x plus x/2 3/2x is equal to 1। From here x will be equal to 2/3। ये देख रहे हैं हमने x को वर्टिकल हाइट ऑफ ए रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिस इज द वर्टिकल हाइट ऑफ ए है ये। सिमिलरली हाइट ऑफ बी के लिए हम उस रिलेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे ये हाइट ऑफ बी आ जाएगी, एच हमारे पास है x/2, x हमने फाइंड कर लिया 2/3, तो सो दिस बिकम 2/3 into 2, that is 1/3। This is the height of B। हाइट ऑफ पार्टिकल ए एंड हाइट ऑफ पार्टिकल बी हमने वर्टिकल डिस्टेंस को कहा है हाइट, वो हमने फाइंड कर लिया। नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो गेन काइनेटिक एनर्जी में गेन जो होगा वो लॉस इन पीई होता है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज द सरफेस इज स्मूथ। तो हम गेन इन के ई फाइंड करेंगे, वो इक्वल होगा लॉस इन पीई के। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ये देखें, दोनों पार्टिकल्स मूव करेंगे व्हेन दे रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी को हम करेंगे ऐड 1/2। हम पार्टिकल ए के लिए 1/2 mv², m इज 4, v² v हमने फाइंड करना है, ऐसा लिख लें, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए उसका m 1/2 mv², m इज दिस v उसका भी सेम होगा। लॉस इन potential energy mgh of A minus mgh of B, m पार्टिकल ए के लिए m g h इसके हमने फाइंड कर लिया, वो 2/3 है, माइनस पार्टिकल बी की m g h इज 1/3। तो अब हम इसको कैलकुलेट करके हम v फाइंड कर लेंगे। तो दिस बिकम्स 2v²। आफ्टर कैलकुलेटिंग 2v² प्लस 1.5v² is equal to 80/3 minus 10, so this becomes 3.5 v² is equal to 50/3। From here v² will be 50/10.5, now taking square root we will get v is equal to 2.18 मीटर पर सेकेंड। दोनों पार्टिकल की स्पीड जो है वो सेम होगी because they are attached with the same string that is passing over the pulley। दोनों की स्पीड जो है वो सेम होगी। 2.18 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर।